Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning science of class 5. This is EduRite series by Amit Publishing House and here is a book Innovators Science. Today we are going to start with chapter number 13, our environment. Let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about what is environment, pollution, greenhouse effect, how to improve the surroundings, destruction of environment, types of pollution, cleanliness of environment and Swachh Bharat Abhiyan. Let's move on to kick off. So we often hear the word environment. ये जो word है ये हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं. Being used on television, in newspapers and by people around us. कहाँ सुनते हैं? टीवी में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में सुनते हैं और अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं. Our elders tell us that environment is not what it used to be earlier. हमारे elders बताते हैं कि पहले ऐसा environment नहीं था या environment वो नहीं है जो अब आप देख रहे हो, पहले तो कुछ और था. While others say that there are issues related to development and developing कंट्रीज. और कुछ का कहना है कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी वजह से एनवायरनमेंट में काफी सारी जो कमियां आ गई हैं. मीटिंग आर रेगुलरली हेल्ड बिटवीन कंट्रीज टू डिस्कस एनवायरमेंटल इश्यूज और इन एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए रोज रोज मीटिंग्स हो रही हैं. लेट्स रीड अबाउट द एनवायरनमेंट. तो चलिए एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. Let's move on to Funtopia. So here you have to observe the pictures given below. यहाँ पे आप दो pictures देख सकते हैं and you have to answer the questions that follow. So in which of the given places would you like to live and why? इन दोनों में से किस जगह आप रहना चाहेंगे और क्यों? So you have to answer this yourself. Now let's move on to what is environment. So various things present around us फॉर्म आवर एनवायरमेंट. जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो एनवायरमेंट को क्रिएट करती हैं. इट इंक्लूड्स एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड अदर लिविंग थिंग्स. इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं एंड दे आर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड इट्स नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. आवर एनवायरमेंट कंसिस्ट बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे एनवायरमेंट में ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी. All living things including humans depend on the non-living things. जितने भी living things हैं, humans भी उसमें आते हैं, वो सारे जो है non-living things पे dependent हैं. For example, we need air to breathe and water to drink. हमें air और water दोनों की ज़रूरत होती है. We get these from the environment around us. और ये चीज़ें हमें अपने आसपास के environment से मिलती हैं. The food that we eat also comes from plants and animals. वो खाना जो हम खाते हैं वो भी plants और animals से आता है. We obtain raw materials like soils, sand, stones, etc. अब ये जो चीज़ें हैं raw materials ये भी जो है हमें environment देता है. And from the earth to build our homes and other buildings. So अपना घर बनाने के लिए, दूसरी buildings बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? Environment देता है. Let's move on to destruction of environment. So increase in population and advancement of technology. जैसे जैसे जो population increase हो रही है, technology advance हो रही है, has resulted the change in the environment. जो environment है उसमें changes इसी की वजह से आए हैं. To meet the demand of people, green lands have to be changed into high-rise buildings. So ये जो demand है लोगों की उसको meet करने के लिए नए ग्रीन लैंड्स बनाए गए हैं और ये जो है अब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं एंड बिग इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट हो चुके हैं. नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड ऑन द रोड. रोड पे व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं विच रिलीज स्मोक, जो स्मोक को रिलीज कर रहे हैं. इवन द फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल स्मोक और ये जो फैक्ट्रीज हैं ये भी हार्मफुल स्मोक को रिलीज करते हैं. दस ह्यूमन एक्टिविटीज have also increased considerably. और इसी तरीके से जो human activities है वो भी बढ़ती जा रही हैं. The effects of the human activities are deforestation, degradation of soil, acid rain, greenhouse effects
एंड पोल्यूशन। ये सारे जो हैं इफेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेट अस नो मोर अबाउट पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो चलिए पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज पोल्यूशन। So the presence of toxic substances which have harmful and poisonous effects on the environment are called pollution. So जब toxic substances जो हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा harmful है, poisonous है हमारे लिए, environment के लिए, वो जो है environment में मिल जाते हैं, तो उसे ही हम pollution कहते हैं। The substances that cause pollution are called pollutants. वो substances जो pollution को क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द कॉज ऑफ पोल्यूशन। सो ह्यूमन बींग्स हैव ऑल्टर्ड द एनवायरमेंट ओवर द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, एनवायरमेंट को चेंज करते जा रहे हैं, कई सालों से चेंज कर रहे हैं। And due to increase in human population, more land is being used to provide shelter. क्योंकि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जो है यूज़ किया जा रहा है एंड शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए। सो फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर वेरियस पर्पसेस। अब फॉरेस्ट को काटा जा रहा है बहुत सारे कामों के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स आर पुट इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड्स टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अब फूड को जैसे ये जो है जनसंख्या बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो रहा है, काफी ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को डाला जा रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रीज हैज चेंज्ड द एनवायरनमेंट एडवर्सली। अब जब डैम्स बनाए जा रहे हैं, पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं या दूसरी इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं। एंड दस मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट ओनली पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो हार्मिंग द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये सिर्फ जो है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। So there are various types of pollution. अलग अलग तरीके के pollution है। पहला आता है air pollution. So air pollution कब होता है? It occurs due to release of pollutants such as dust, smoke, harmful gases from factories, vehicles and from the burning of fossil fuels into air. So ये pollution कैसे होता है? जब dust, smoke, harmful gases जो है air में release की जाती हैं factories से, vehicles से and fossil fuel को burn करने से, तो ये एयर पोल्यूशन होता है। दे लोअर द क्वालिटी ऑफ एयर, ये एयर की क्वालिटी को कम कर देते हैं। मेक इट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, और ये हमारे हेल्थ के लिए एयर की क्वालिटी को काफी ज्यादा नुकसानदायक बना देते हैं। ब्रीदिंग पोल्यूटेड और डर्टी एयर कॉजेज अस्थमा एंड लंग कैंसर। अब अगर हम ये पोल्यूटेड एयर जो ब्रीद इन कर रहे हैं तो क्या होगा, अस्थमा और लंग कैंसर हो जाता है। गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन added to the air increase the temperature of the earth। अब ये जो गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं अर्थ के, एंड इसकी वजह से क्या होता है, एंड दिस रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। इराटिक रेन्स एंड ड्राउट्स अराउंड द वर्ल्ड आर सम ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। ये भी जो है कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। Now let's move on to just a heads up. So Delhi and in some major cities, government has made it mandatory to use CNG, means compressed natural gas, in the public vehicles as it causes less pollution compared to petrol and diesel. So दिल्ली और उसके आसपास की जगहों में CNG vehicles को compulsory कर दिया गया है, mandatory कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो CNG है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले जो है कम जो है पोल्यूशन को क्रिएट करती है। नेक्स्ट कम्स वाटर पोल्यूशन। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। सो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जब ये पानी में मिल जाते हैं तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एंड दिस डिटोरिएट्स
द क्वालिटी ऑफ वाटर, और उसकी वजह से जो पानी की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ effluents from industries containing poisonous substances, disease causing germs etc. ये पॉल्यूशन कैसे होता है? जब इंडस्ट्रीज जो है अपने वेस्ट को जो है पानी में बहा देते हैं, जिससे जो है काफी ज्यादा डिजीज कॉजिंग जर्म्स भी जो है फैल जाते हैं। पीपल ऑफन बेथ देयर एनिमल्स, अब लोग अपने एनिमल्स को भी यही नहला रहे हैं, अपने कपड़ों को यही धो रहे हैं, बर्तनों को यही धो रहे हैं, और तो और ये क्या कर रहे हैं, इवन थ्रो हाउस होल्ड वेस्ट, अपने घर के जो कूड़ा कबाड़ा है उसको भी यही पानी मिला के फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन, लेट्स सी। You have to collect some water from a nearby water body in a transparent glass. एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको आसपास के किसी भी जगह से पानी को इकट्ठा करना है। Take some water from a water purifier. आपको थोड़ा सा पानी लेना है वाटर प्यूरिफायर से एक दूसरे ट्रांसपेरेंट ग्लास में। Mark both the glasses as A and B. दोनों ही ग्लासेस पे A and B लिखना है हमें। And keep them undisturbed for hours. घंटों तक उन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। Now check what do you notice. आपको देखना है कि आप क्या नोटिस कर रहे हो। Is the water in both the glasses same? क्या दोनों ही ग्लास में जो पानी है वो सेम दिख रहा है? In which glass some sediments are seen at the bottom and why? किस ग्लास में आपको sediments नीचे बैठे हुए दिख रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? So do this activity and find out the answer. Next comes land pollution. So land pollution is the addition of waste to the land as a result of human activities. Land pollution क्या है? ये जो है waste को add करना land में human activities की वजह से, that degrades the soil and underground water. जिसकी वजह से जो soil है उसका जो level है वो degrade होता है and underground water जो है ground water वो भी खराब होता है। Pesticides, fertilizers, acid rain and solid waste such as polythene bags, bottles and cans cause land pollution. अब ये सारी चीजें जो है land pollution में अपना योगदान दे रही हैं। Land pollution makes land infertile, और ये जो land pollution है ये हमारे land को infertile बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं land pollution. Next आता है noise pollution. So when excessive noise is produced, जब बहुत ज्यादा noise produce होती है तो इसकी वजह से noise pollution होता है। Some main sources of noise pollution are machines in factories. अब कुछ जो है major sources noise pollution के दिए गए हैं जिसमें फैक्ट्री में मशीन काम कर रहे हैं वो noise create कर रहे हैं, vehicles noise को create कर रहे हैं, लाउड स्पीकर्स हो गए या दूसरे entertainment gadgets हो गए जैसे कि टीवी और रेडियो, ये सब भी नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। We know that the atmosphere envelops the earth. हम सबको पता है कि अर्थ जो है एटमॉस्फेयर से ढका हुआ है। When the rays of the sun fall on the earth surface, जैसे ही सूरज की किरणें अर्थ पे पड़ती हैं, the surface traps some of the sun rays. जो सरफेस से क्या करता है, सूरज की कुछ किरणों को इकट्ठा कर लेता है। The rest of the rays are reflected by the earth's surface and the atmosphere. So जो बाकी बची हुई रेज हैं वो अर्थ के सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड एटमॉस्फेयर से भी चली जाती है। The absorbed sun's energy makes the surface of the earth warm. और ये सन की एनर्जी जो अब्जॉर्ब हो गई वो क्या करती है, अर्थ के सरफेस को वार्म बनाती है। So this is similar to what happens in a greenhouse. और यही सेम चीज होता है ग्रीन हाउस में। Let's move on to just a heads up. So gases present in the atmosphere that can trap the energy from the earth are termed as greenhouse gases. वो गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है जो ट्रैप कर सकती हैं एनर्जी को, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। The most common greenhouse gases are water vapor, carbon dioxide and methane. ये तीन जो है मेन जो है greenhouse gases हैं। Now let's learn about greenhouse effect. So the earth is like a glass house. हमारा जो earth है वो एक glass house की तरह है
ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस, जिसे हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं, वे प्लांट्स आर ग्रोन इन एन एनक्लोज्ड स्पेस, जहाँ पे जो प्लांट्स हैं ग्रो किए जाते हैं एक बंद स्पेस में, विथ वॉल्स मेड ऑफ ग्लास, जहाँ पे वॉल्स जो है ग्लास से बने हुए होते हैं, एंड दीज वॉल्स अलाउ द सन रेज टू एंटर द ग्लास हाउस। अब ये ग्लास क्या करता है, सूरज की किरणों को अंदर आने में हेल्प करता है, बट डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप, लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देता है। Therefore the heat of the sun warms the inside of the glass house। तो ये जो सूरज की गर्मी है ये ग्लास हाउस को अंदर से गर्म करता है, क्रिएटिंग वार्म एंड मॉइस्ट एयर सुटेबल फॉर प्लांट्स ग्रोथ, जिससे जो है एक वार्म और मॉइस्ट जो है एनवायरमेंट क्रिएट होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इन अ ग्रीन हाउस क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड, और इस ग्रीन हाउस में जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल्ड होता है। सो द हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो ये जो हार्मफुल गैसेस जो फैक्ट्रीज से या व्हीकल से निकल रहे हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एंड दीज गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हम CFCs भी कहते हैं। सो ये जो गैसेस हैं इनमें ये सारी गैसेस आपको मिलेंगी, एंड दीज गैसेस आर एबल टू ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अब ये जो गैसेस हैं ये क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को पकड़ के रख लेते हैं, उसे जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से जाने में जो है रोकते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इन फर्दर हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसकी वजह से जो अर्थ का सरफेस है वो और ज्यादा गर्म हो जाता है। These gases are called greenhouse gases, इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। The increase in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere leads to an increase in the amount of heat close to the earth's surface। So जैसे जैसे ये जो है concentration जो ग्रीन हाउस गैसेस का है एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहता है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है अर्थ के सरफेस के पास वो भी बढ़ती है, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट कम्स ग्रीन हाउस गैसेस। सो द इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, also known as CFCs। Let's learn about carbon dioxide. So the increased burning of fossil fuels in factories, power plants and vehicles and destruction of rainforests have caused an increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere over the last 100 years. So जैसे जैसे ये जो fossil fuels है इन्हें फैक्ट्रीज में बर्न किया जाता है, पावर प्लांट्स में बर्न किया जाता है या व्हीकल्स में बर्न किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो रेन फॉरेस्ट हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, एंड इन सब चीज़ों की वजह से, रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करने की वजह से, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से क्या होता है, जो इंक्रीज है कॉन्सेंट्रेशन का कार्बन डाइऑक्साइड का, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस गैस कंटिन्यूज टू इंक्रीज, अगर ये गैस लगातार ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या होगा, इट विल लीड टू ट्रैपिंग ऑफ मोर हीट फ्रॉम द सन। तो जितनी ज़्यादा ये गैस बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये सूरज की रोशनी को ट्रैप करती रहेगी, विच इन टर्न विल रिजल्ट इन फर्दर इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर, और जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो और ज्यादा बढ़ता रहेगा। लेट्स लर्न अबाउट मीथेन। सो मीथेन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम। मीथेन जो है हमारे एनवायरमेंट में कैसे ऐड होता है, जब हम कोल और पेट्रोलियम को बहुत ज्यादा अमाउंट में बर्न करते हैं तो उसकी वजह से मीथेन गैस पैदा होती है। एमिशंस फ्रॉम नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज, एनिमल फार्मिंग से या फिर नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज से भी जो है इसका एमिशन होता है, एंड डीके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड वेटलैंड्स।
जब ये चीजें जो है डीके या फिर डिकम्पोज होती हैं उससे भी मीथेन गैस निकलती है। When the grass eating animals digest their food, their bodies release large amount of methane in the atmosphere. So जब ये जो grass eating animals हैं ये काफी सारा खाना खाते हैं, उनका खाना जब पच जाता है तो ये एनिमल्स भी काफी ज्यादा अमाउंट में मीथेन गैस को जो है रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। द वेस्ट ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर, ये जो वेस्ट एनिमल्स का इन्हें मैन्योर कहते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स ऑल्सो रिलीज मीथेन। सो ये जो मैन्योर है या जो ये फर्टिलाइजर्स है ये क्या करते हैं, ये भी मीथेन को रिलीज करते हैं। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। सो इस तरीके से मीथेन भी जो है एटमॉस्फेयर में फैलता जा रहा है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड। So the main source of nitrous oxide are the burning of fossil fuels and plants and animal matter. So अब ये नाइट्रस ऑक्साइड है ये कैसे पैदा होता है? ये काफ़ी सारा फॉसिल फ्यूल बर्न करने पे पैदा होता है, या फिर अगर हम प्लांट और एनिमल मैटर को भी जो है क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो भी ये पैदा होता है। In addition, the use of fertilizers in agricultural practices also leads to release of nitrous oxide into the atmosphere. So atmosphere में नाइट्रस ऑक्साइड इसके अलावा जो फर्टिलाइजर से भी फैल रहा है, जो कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर वेपर। सो वाटर वेपर इज द अर्थ मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस। ये जो है अर्थ का सबसे ज्यादा अमाउंट में जो होने वाला ग्रीन हाउस गैस है वो है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 66 to 85% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए 66 से 85% तक रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है ओजोन। ओजोन एट सरफेस लेवल इज अनदर सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस। ओजोन जो है ये भी एक जो है ग्रीन हाउस गैस है। एंड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एयर। सो जो ये अर्बनाइजेशन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इनकी वजह से भी जो है ये इंक्रीज हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ओजोन जो पार्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इन फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFCs भी कहते हैं। तो CFCs आर केमिकल्स कॉमनली यूज इन रेफ्रिजरेटर्स। ये जो है ये ऐसे केमिकल्स हैं जिन्हें हम फ्रिज में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज करते हैं। So it also traps the energy of the sun and warms up the atmosphere. ये भी क्या करता है, ये भी क्या है जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और हमारे एटमॉस्फेयर को और ज्यादा गर्म बनाता है। Now let's learn about the cleanliness of environment. So the environment is our immediate surrounding. Environment जो है हमारा immediate surrounding है, and it is our moral and social duty to keep our surroundings clean. ये हमारी moral और social duty है कि हम अपने surrounding को clean रखें। Our surroundings include our neighborhood and even the school where we spend lots of time every day. So ये जो हमारा surrounding है इसमें हमारा neighborhood आता है, हमारा school आता है जहाँ पे हम काफी ज्यादा समय बिताते हैं। Living in clean places has always been good for people. लोगों को अच्छा लगता है ऐसे ही साफ सुथरी जगहों पर रहना। The air we breathe, the water we drink and the roads we walk on must be free from pollution. So जो पानी हम पी रहे हैं या वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं या वो रोड जिस पे हम चल रहे हैं वो सारे जो है pollution free होनी चाहिए। Hence, it's important to always keep the parks, lawns, roads and other areas near our homes clean. So हमें जो है ये सारी जगह जो है क्लीन रखनी चाहिए। Now what makes your surrounding dirty? अब हमारे सराउंडिंग को क्या चीज़ डर्टी बनाती है? So यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जो हमारे सराउंडिंग को अनक्लीन या फिर डर्टी बनाती हैं। पहला है डर्टी वाटर इज कलेक्टिंग इन द सराउंडिंग। हमारे आसपास की जगह में डर्टी वाटर कलेक्ट हो रहा है तो इससे हमारा सराउंडिंग डर्टी हो रहा है। नेक्स्ट मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज आर सीन एवरीवेयर। ये जो मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज हैं ये हर जगह दिखाई दे रहे हैं। पीपल स्पिट ऑन द रोड, लोग जो है रोड पे ही थूक रहे हैं। प्लास्टिक आइटम्स आर थ्रोन इन द ड्रेन्स, प्लास्टिक आइटम्स को ड्रेन में डाल दिया जा रहा है। एंड ड्रेन्स गेट क्लॉग बिकॉज ऑफ प्लास्टिक, और ये जो ड्रेन्स है प्लास्टिक की वजह से वो जो है जाम हो जा रहे हैं। तो ये कुछ जो है फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा सराउंडिंग जो है डर्टी है।
नाउ स्टेप्स टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। अब सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। पहला हमें क्या करना है, ट्राई टू कीप योर हाउस एंड द नेबरहुड क्लीन। सबसे पहले हमें अपने घर को और आस पड़ोस को साफ सुथरा रखना चाहिए। नाउ कीप द क्लासरूम एंड स्कूल प्रीमाइसेस क्लीन। अपने क्लास को और स्कूल को क्लीन रखें। थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन्स। गार्बेज को डस्टबिन में डालें। थ्रो द यूज पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स इन सेपरेट बिन्स। यूज किए गए प्लास्टिक बैग्स को और प्लास्टिक बॉटल्स को एक सेपरेट बिन में डालें। क्लीन द डस्टबिन रेगुलरली। डस्टबिन को रेगुलरली क्लीन करें। मेंटेन द टॉयलेट्स इन अ क्लीन एंड हाइजीनिक कंडीशन। टॉयलेट्स को क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में रखें। एंड नेवर स्पिट ऑन द रोड्स। रोड पे कभी भी ना थूकें। लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू इम्प्रूव द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग को कैसे हमें साफ सुथरा स्वच्छ रखना है। सो देयर आर सेवरल वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग को साफ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। ऑल ऑफ अस नीड टू पुट इन अ लिटिल एफर्ट। हम सबको थोड़ा थोड़ा जो है एफर्ट इसमें लगाना होगा। As cleanliness is possible by the joint effort of everyone। क्योंकि जो cleanliness है ये सबके सहयोग से ही पॉसिबल हो सकता है। तो हमें क्या करना है, we have to keep separate bins for plastic and non-plastic waste। प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक वेस्ट के लिए हमें दो अलग अलग जो है बिन्स रखने हैं। सेपरेट द प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक गार्बेज, इन दोनों को अलग अलग रखें। थ्रो द वेस्ट इन एन एप्रोप्रिएट बिन टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रॉपरली। अब जो भी कूड़ा है उसे सही बिन में डालें ताकि जो कूड़ा है वो प्रॉपरली जो है डिस्पोज ऑफ हो। रिसाइकल एंड रीयूज थिंग्स दैट यू डू नॉट यूज एनी मोर। ऐसी चीजें जो आप यूज नहीं कर रहे उन्हें रिसाइकल या फिर रीयूज करें। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स, दे विल कीप द एयर फ्रेश। अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि ये हमारे एयर को फ्रेश रखेंगे। से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक को नो बोले मीन्स प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, ना ही यूज करें तो बेहतर है। यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए पेपर या फिर कपड़े से बना हुआ बैग यूज करें। टू कीप द सिटीज एंड टाउन्स क्लीन ऑल ओवर द कंट्री। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सिटीज को टाउन्स को जो है क्लीन रखें पूरी कंट्री में, तो क्या करना होगा, अ क्लीनलीनेस ड्राइव हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट किया है which aims to keep the roads, streets and other setups clean। जिसका काम है इन सब जगहों को साफ रखना। Let us know about it। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। So it is स्वच्छ भारत अभियान। So स्वच्छ भारत अभियान, also called the Clean India Mission, is a national level campaign initiated by the government of India। सो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अभियान जो है लॉन्च किया था टू मेक ऑल द टाउन्स क्लीन, सारे टाउन्स को क्लीन बनाने के लिए। दिस कैंपेन वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन 145th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2nd of October in 2014 एट राजघाट, न्यू दिल्ली। तो इस जगह पे महात्मा गांधी के सम्मान में इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। This movement involves the building of toilets, promoting cleanliness in rural areas and cleaning streets and roads of the country। अब ये जो मूवमेंट है इसमें बिल्डिंग्स को जो है स्वच्छ रखना, टॉयलेट्स बनाना, क्लीनलीनेस को प्रमोट करना, रूरल एरियाज में स्ट्रीट्स को साफ रखना, रोड्स को साफ रखना, ये सारी चीजें की गई हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेक टीचिंग फन। So चंडी प्रसाद भट्ट is an Indian environmentalist। ये एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं and in 1964 he founded दशहोली ग्राम स्वराज संघ in गोपेश्वर। So इन्होंने ये जो है ढूंढा था which later became a mother organization of the चिपको मूवमेंट, जो कि चिपको मूवमेंट का मदर ऑर्गेनाइजेशन बाद में जाके बन गया। So he was one of the pioneers of this movement। ये इस मूवमेंट के एक पार्ट थे and today he is known for his work on environment and considered one of the India's first modern environmentalist। इन्हें आज के टाइम में जो है काफी अच्छे environmentalist के रूप में जाना जाता है। Now let's move on to word set। So environment is the surrounding in which living and non-living things exist and interact।
Pollution is the presence of harmful and poisonous substances in the environment, and the pollutants are the substances that cause pollution. Let's move on to quick review. All that surrounds us is our environment. All the organisms depend on the environment for food, shelter, space and water. Increase in population and advancement in technology has changed the environment. Pollution is the introduction of harmful substances in the environment. The main cause of pollution is human activities. Addition of harmful substances in air is called air pollution, and the introduction of harmful substances in water is called water pollution. So now let's quickly move on to book exercise, which is put on your thinking cap. Here A exercise is darken the correct option in OMR sheet. First question is, which of the following is greenhouse gas? Nitrogen, hydrogen, methane or oxygen? Correct answer is methane. Second, which of the following may cause land pollution? Sewage, sludge, manure, water, plants? Here the correct answer is sewage, sludge. Third one, which of the following is harmful for the environment? Rain, wind, smoke from vehicles, growing plants. Correct answer is smoke from vehicles. And the fourth one is, which of the following is the main cause of pollution? Human activities, growing plants, discarding plastic, using manure. So here the correct answer is human activities. So you have to mark them. Let's move on to the next exercise, B exercise, which is fill in the blanks with correct words from the box. So here the first one is, the effects of the human activities are deforestation, degradation of soil, etc. Second, the introduction of harmful substances in water is called water pollution. Third, emission of gases from industries into atmosphere pollutes the environment. Fourth one, deposition of solid waste materials and poisonous chemicals on land is called land pollution. And the fifth one is Swachh Bharat Abhiyan is the Clean India mission. Let's move on to C exercise, which is think and answer. First one is, all that surrounds you is environment. Second, cutting down of trees in mass scale is called deforestation. Third, introduction of harmful substances into the environment is called pollution. Fourth, pollution caused due to harmful matter in water is called water pollution. And the fifth one is a greenhouse gas is methane. So these are the answers. Let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Here the first one is define environment. So environment consists of all the living beings that surround it. And let's move on to the next second question. What is global warming? Global warming is when the greenhouse gases increase the temperature of earth, it is called global warming. Now, third one, what leads to the change in the environment? So, there are various factors that leads to the change in the environment. These are natural and human-made factors, and these can be deforestation, volcanic eruption, and others. Now, fourth question is, what is pollution? Name the different types of pollution. Pollution is the degradation of the environment, and it can be because of various factors. And there are different types of pollutions. It is water pollution, air pollution, land pollution, noise pollution. So these pollutions that degrade the earth, these are called pollution. Now, fifth one, what are greenhouse gases? So greenhouse gases are the gases on earth's atmosphere that traps heat of the sun and do not release it. Next comes sixth one, what do you understand by land pollution? So when the land is polluted by different materials, different waste materials are thrown on the land, it is called land pollution, and because of this the various diseases increase. So the seventh question is, what is greenhouse effect? So greenhouse effect is a natural process in which the gases present in the atmosphere, it prevents the sun's heat from escaping the atmosphere. It is called greenhouse effect, and the gases are carbon dioxide and methane. Now, eighth one is, what steps can you take to improve the cleanliness of the environment? So the steps that we can take to improve the cleanliness of the environment are, we can
reduce and reuse the products. We do not have to use plastic bags. Instead, we can use paper bags or cloth bags. We have to plant more trees and we have to conserve water. So, these are some of the steps we can take. So, these are the answers. Some more points you can add here, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.